Okay, guys, I'm audible. Good morning, all of you. How are you? Uh, this is Amit Kumar. First of all, I will let you know about myself. So, I'm Amit Kumar and I teach you ethics. So, today is a first class, I think demo class. So, you should study properly. And then we will study each and everything. Don't miss a single point. So please be carefully. You have to study. Okay. So let's start. For, so basically, I want to know how are you. I hope you are doing well. I'm audible. Okay, I'm audible. Okay, good. So as we know, ethics. Ethics is a fourth paper, जैसा आप जानते हैं, and this is a very important because it's a single paper. इसमें कोई other subjects नहीं ऐड है. So ये जो ethics है और 250 marks का अकेला है. ओके. ठीक है. और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर ये है, इसमें एप्टीट्यूड भी है आपका. एप्टीट्यूड, एटीट्यूड. I'm audible. Please check once. I'm audible. Hello, dear students. I'm audible. Yes. Yes. Okay. Good. Ansul Bajpayee and okay. Okay. Good. So shall we start? Okay. So I'm okay. Good. So I'm teaching you about ethics. Ethics, attitude, values. Ethics, not the only ethics word. Ethics, it means basically the morals. Moral, it means ethics. But moral is an individual. What you think about yourself, you are doing right things or wrong things, that is moral. But if you do your work according to society, according to law, according to universal law, so that is ethics. Okay. But sometime we have to think about what we are doing. But a society decides that is right or wrong, ये सही है कि गलत है. ये कौन डिसाइड करता है? कई बार सोसाइटी कहती है कि यू आर डूइंग रॉन्ग, बट you think you did very well, but society said नहीं, this is a wrong thing. Because क्योंकि वो सोसाइटी तय कर रही. इट मीन्स एथिक्स. बेसिकली मैं एथिक्स के बारे में ज़्यादा तो नहीं, यहाँ से अभी स्टार्ट करेंगे हम. एथिक्स इट मीन्स ये एक फिलॉसफी. Philosophy, this is the branch of philosophy. Ethics is the branch of philosophy. That's why it is called moral philosophy also. ये moral philosophy भी इसे बोलते हैं, philosophy. या फिर हम एक अदर वर्ड में एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मोरल प्लस रीजनिंग is equal to ethics. Why? Because you are thinking about yourself, what you did. But when someone raising a question, आपके सामने कोई क्वेश्चन उठाने लगे कि बिकॉज व्हाई इट इज राइट, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने लगे कि कैसे कह सकते हो, हाउ हाउ डू यू से दिस इज राइट.
सो फिर आपको वहाँ एक्सप्लेन, यू हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ वाई आई एम सेइंग दिस इज राइट, वाई आई एम सेइंग आई डिड राइट थिंग्स. So that things, it mean that things are called reasoning. So this kind of things are called moral plus reasoning is equal to ethics and philosophy. This is the moral philosophy. So moral philosophy is called ethics. Okay, बस इस चीज को ध्यान देना. And ethics का meaning ये है, this is the study of right or wrong of human action. जो ह्यूमन एक्शन कर रहा है, ह्यूमन कंडक्ट है, उसका राइट और रॉन्ग एक्शन क्या है, उस चीज को जो बताएगा, उस चीज को जो कहेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम लेकर आते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या चीज, कि ये इथिक्स है. बेसिकली दिस इज एथिक्स. तो इन चीज़ों को हमें बड़े इसमें बड़े उसमें देखना है, बड़ी हर एक पॉइंट को आपको नोट करते जाना है. बेसिकली मैं आपको नोट्स नहीं होगा तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा. सो आपको अगर मैं कोई पॉइंट लिख रहा हूँ तो उन चीज़ों को हम वहाँ पर कर लेंगे, ठीक है. क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा उस तरीके से तो नहीं, थोड़ा सा लिखाना बड़ा टफ हो जाएगा. So basically I am saying about the ethics. Ethics is the study of what is right, what is wrong in the human conduct. That is ethics. If you want to write, you can write. Ethics is the study of what is right or wrong in the human conduct, and this is the branch of philosophy which studies moral principles, also known moral principles. These are, so ethics is also called moral principle, या moral philosophy. एंड यू नो मोस्ट ऑफ थिंग्स की इथिक्स, जैसे मैंने बताया है कि एक ह्यूमन जो कंसर्न कर रहा है, सोसाइटी के साथ जो डील कर रहा है, वो फिलोसफिकल रीजनिंग के साथ, तो दैट इज कॉल्ड, इट मीन्स योर बिहेवियर शुड कंसीडर. ये कौन कंसीडर कर रहा है, योर बिहेवियर सोसाइटी शुड कंसीडर राइट और रॉन्ग, और यूनिवर्सल लॉ consider right and wrong. Are you getting my point, what I am saying? आपको समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं? मैं जरूर चैट में थोड़ा सा लिख देंगे ना, सो मैं और बेटर, अगर इफ आपको कहीं भी इफ यू हैव एनी डाउट्स देन आई विल एक्सप्लेन. ओके, सो क्योंकि फिर बाद में क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए. ओके, एंड दिस इज बेसिकली, और इसको हमें और समझने के लिए यू हैव एग्जांपल्स, लॉट ऑफ एग्जांपल्स यू हैव. लाइक नंबर 1, आप इस पे देख लें, लॉयर्स है ना, लॉयर्स. सम टाइम ऐसा होता है, कई बार सोसाइटी, कई बार आपका प्रोफेशन, यहाँ पर कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं. आगे हम कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर भी है. आप जैसे फर्स्ट ऑफ अपने से ले लो एग्जांपल, इफ यू आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी, सो यू आर डूइंग राइट थिंग्स और रॉन्ग थिंग्स, बिकॉज योर पेरेंट्स इन्वेस्टिंग मनी फॉर योर स्टडी, बट यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर स्टडी. सो यहाँ पर आपके पेरेंट्स डूइंग राइट थिंग्स, इट मीन्स दे आर इथिकल, but you are not doing preparation very well what UPSC need. So it means you are doing wrong things. It means you are not ethical. आप ethical नहीं हो अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने ड्यूटी के लिए ethical नहीं हो. You should be ethical, you must be ethical, because parents are paying to you for the study, but you are wasting your time and money also. तो वहां पर अगर आप ऐसा करो, इफ यू आर डूइंग प्रिपरेशन वेरी वेल, इट मीन्स यू आर डूइंग राइट थिंग्स. राइट थिंग्स इट मीन्स कि आप से इथिकल हो, अपने काम के लिए इथिकल हो. यही चीजें आफ्टर सम टाइम जब आप ब्यूरोक्रेट बनते हो तो आपको वहां पर भी काम आता है. वहां पर बहुत सारी चीजें यूपीएससी में जब जाएंगे तो यहाँ पर ये यही बताता है इथिक्स की और ड्यूटीज क्या है, आपकी पर्सनल ड्यूटीज क्या है, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज क्या है,
क्या आपके लिए राइट है, क्या रॉन्ग है, कैसे आप डिसीजन, अगर इफ यू आर डूइंग राइट थिंग्स, इफ यू आर थिंकिंग राइट थिंग्स, तो इट आपका एक्शन भी राइट होगा, यू विल टेक राइट डिसीजन, यू विल मेक योर राइट डिसीजन। तो वहां पर चीजें यहाँ पर आती हैं। सपोज करो कि एक लॉयर है, जैसे मैंने बताया लॉयर का भी है प्रोफेशन, कहता है कि आपका जो क्लाइंट है उसको जिताना है, यू हैव टू मेक दैट पर्सन विन। बट आपका जो सोसाइटी है, यू नो वेरी वेल कि ही इज गिल्टी, सोसाइटी के लिए रंग गलत है, ये इथिकल नहीं है, बट अगर आप सोसाइटी के हिसाब से करते हो तो वहां पर रॉन्ग हो जाओगे, अपने प्रोफेशन के साथ रॉन्ग हो जाओगे, अगर प्रोफेशन को देखते हो तो सोसाइटी के हिसाब से रॉन्ग हो जाओगे। कई बार ऐसे कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। सपोज करो कि आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको चीजें नहीं पढ़ाऊं ठीक से, नई चीजें कुछ स्किप कर दूं, कुछ चीजें नहीं समझ आए आपको और आप डाउट पूछ रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, इट मीन्स आई एम नॉट डूइंग राइट थिंग्स। ये मेरा प्रोफेशन है और मैं इसमें आपको सही नहीं दे पा रहा, और मुझे इंस्टीट्यूट या कोई भी पे कर रहा है उस चीज़ का पैसा, तो मैं अगर ठीक नहीं कर रहा तो मैं इसका मतलब इथिकल नहीं हूँ अपने लिए। अगर मैं सही पढ़ा रहा हूँ आप सही नहीं पढ़ रहे हो तो यहाँ पर मैं इथिकल हो गया और आप अनइथिकल हो गया। तो यहाँ पर ये भी ऐसा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड आप ले सकते हैं, हर चीज़ को सोच सकते हैं, दैट वुड बी बेटर। नेक्स्ट पॉइंट इज, इसमें एक पॉइंट और आपको ध्यान देना है, चीज़ों को और समझना है। मोरल क्या है, ये बेसिकली एथिक्स हो गया। एथिक्स क्या है, एथिक्स के बारे में आपने समझ लिया। व्हाट इज मोरल, मोरल डेफिनेशन क्या है, कि आप पूछोगे कि सर इसमें आपने मोरल मोरल वर्ड बहुत बार जोड़ा है, व्हाट इज मोरल। बेसिकली morals are personal principle, आर इंडिविजुअल कह सकते हो, और पर्सनल कह सकते हो, पर्सनल प्रिंसिपल्स ऑन विच वंस जजमेंट ऑन ऑफ राइट और रॉन्ग आर बेस्ड। मतलब आपके पास इसमें रीजनिंग तो अवेलेबल होती है बट इंडिविजुअल लेवल पर रीजनिंग है। इट मीन्स कि यहाँ पर रीजनिंग जो होगी या फिर कुछ भी बात होती है वो कैसी है, इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल लेवल, आर पर्सनल बेस्ड, पर्सनल लेवल। रीजनिंग यहां पर भी होगी बट आप अपने में सोच रहे होगे, ये घर से मिलते हैं। जैसे कहते हैं ना कभी कभार कि वो मेरा भाई किसी की नहीं सुनता, उसको जो सही लगता है वो ठीक करता है। जैसे आप कहते हैं हमारे पापा हमेशा ठीक रहते हैं, वो कभी गलत नहीं कहते, लेकिन सोसाइटी पता नहीं उनको क्यों कहती है गलत गलत है। रीजन ये है कि आपको चीजें समझ नहीं आ रही, सोसाइटी क्यों कह रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है। वो आपको या पर्सनल मोरालिटी पर आपको लग रहा है कि ये चीजें सही लग रही हैं, उनको लग रहा है सही लग रही हैं। जैसे कई बार आपके लाइफ में होता है, आप जब स्टडी कर रहे होते हैं उस टाइम पे बहुत सारी आती हैं। जैसे कई बार होता है कि पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, और खास करके गर्ल्स के साथ ऐसा होता है, कभी कुछ ऐसी बात हुई, इमोशनली बहुत वीक होती हैं, तो बहुत इमोशनल होती हैं गर्ल्स, तो वो कभी कभार क्या होती हैं कि रो देती हैं, है ना, कुछ ऐसे टेंशन में है या फिर उसका, तो वहाँ पर कंधा देने के लिए बहुत सारे बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स बॉयज़ क्लासेस में होते हैं, जहाँ भी होंगे, जहाँ साथ में होंगे, वो तुरंत कंधा देते हैं कि नहीं बताओ क्या हाथ है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। बट आपको उस टाइम पर जैसे जैसे वो थोड़ा सा कंधा दिया, आपने उस कंधे पे रोना शुरू किया उस, और कोई भी ऐसे कंधा आपको फ्री में नहीं देता, उसका कुछ ना कुछ वो सोच के रखता है, आजकल कुछ ऐसा फ्री में नहीं मिलता है। वो अपना वो तो रॉन्ग कर ही रहा था, लेकिन उसने फिर इसके बाद जैसे कंधा देने के बाद वो आपका खास हो जाता है, आपके पेरेंट्स से ज्यादा खास हो जाता है। फिर वो आपको ये लगता है उस टाइम पे महसूस होता है कि आई एम एडल्ट पर्सन, आई कैन चूज माई लाइफ, एंड आपको आर्टिकल 21 याद आने लगता है तुरंत, क्या है राइट, है ना, आपके पास राइट है कि आप क्या करो लाइफ में। आप उस टाइम पे उस राइट के चक्कर में, उस फ्रीडम के लिए आप क्या करते हैं, अपना एथिक्स भूल जाते हैं, अपनी चीजों को भूल जाते हैं, सही गलत करना, सही गलत के बीच में जो फर्क है दैट इज एथिकल। वहां पर मोरालिटी लेके आते हैं आप, वहां पर एथिक्स नहीं रह जाता, वहां मोरल्स आ जाते हैं। आपको लगता है कि जो ये पर्सन कह रहा है, जो मैं बोल रहा हूं दैट इज राइट थिंग, वी आर डूइंग राइट थिंग्स।
We have a right, we have a article 21, we can choose, we can do anything in my life. So वो चीजें जो आपके साथ चल रही हैं, that is bad things, that is unethical things. और आप अपने पेरेंट्स को उस टाइम पे अनएथिकल समझाते हो, अपने पेरेंट्स से लड़ भी जाते हैं कि पापा ऐसा है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आई नो वेरी वेल अबाउट माई सेल्फ व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग इन माई लाइफ. सो पेरेंट्स उस टाइम पे कहते हैं बेटा दिस इज नॉट गुड एंड सोसाइटी व्हाट विल से. सो आपको लगता है कि सोसाइटी थोड़ा ना हमें खाना देती है यार, ऐसे थोड़ा ना, बट आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज कि you did very wrong things. Why? Because that time you can think according to society and you have a knowledge to predict, to know what is ethical, what is unethical, what is right, what is wrong. So that things are called morals. Moral it means, ये आप कह सकते morals are personal principles. Moral are personal principle on which one's judgment of right or wrong are based. Okay, and now so इसके कुछ ऐसी चीजें हैं. अब यहाँ पर अब हमें differences देखने हैं, तो you have a lot of differences. You can compare ethics and morals. Okay, ethics are the rule of human conduct, rule of human conduct and recognized in particular groups. जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे आप आईएएस बनेंगे तो आपका जो डिपार्टमेंट होगा उसके रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करोगे तभी आप इथिकल काम कर पाओगे. उससे बाहर जाके काम करोगे तो इथिकल नहीं काम हो पाएगा, है ना. तो वो चीजें भी आपकी यहाँ पर आती हैं. आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर कई बार आपको इथिकल बनाता है. ठीक है. सो रिकॉग्नाइज्ड कंडक्ट, रिकॉग्नाइज्ड in particular group societies, कल्चर, कई बार आपको ये भी इथिकल अनइथिकल के उसमें ले आता है. हम कहते हैं ना कि यार अभी भी देख लो, कभी कभार आपके आसपास के उसमें पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे यहाँ कल्चर है कि गर्ल्स ये फीट टच नहीं करती हैं किसी की, बिकॉज गर्ल्स आर लाइक अ गॉडेस, देवी की तरह हैं, दुर्गा की तरह हैं, तो इनसे पैर नहीं छुलाते. तो ये कल्चर है. सो उसमें कल्चर, उसका इथिकल कल्चर, वो आपको कहीं ना कहीं ठीक सिखाता है कि आपका रिस्पेक्ट वीमेन के प्रति कितना है ना, वीमेन को कितना आप चाहते हैं. तो एक वो है. मोरल क्या है? मोरल आर प्रिंसिपल ऑन विच वंस जजमेंट. मोरल क्या है? मोरल्स आर principles on which one's judgment of right and wrong are based. Okay, अब इसमें नंबर 1 पॉइंट ये था. नंबर 2 पॉइंट, व्हाट इज नंबर 2? नंबर 2 इज it is more flexible. It is more flexible. Why? Flexible. Why we are saying ethics is a more flexible than morals? Reason is we have a lot of reasons. Like according to time, आपके समय के अनुसार जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ईरा में, हर एक ईरा में एक अलग रूल्स आते हैं, अलग चीजें आती हैं, अलग कल्चर डेवलप होता है. सो अकॉर्डिंग टू ईरा, अकॉर्डिंग टू टाइम,
we can adopt new things in our life, in our society, in our group, तो हम हर चीज को नए नए समय पर उसे रिफॉर्म करते हैं। जो रिफॉर्मेशन रिफॉर्म्स होते हैं, जो प्रैक्टिसेस में लाते हैं, वे अडॉप्ट करते हैं। दैट्स व्हाई इथिक्स आर मोर फ्लेक्सिबल। कि हम, लेकिन मोरल्स कई बार अडॉप्ट नहीं होते। आपको होते ना कि हमारे खानदान में ऐसा चला है कि ऐसे नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता है, तो वो आपका क्या है ना, आप रिजिड हो चुके हो, आप अब बदलना नहीं चाहते हो, आप उस चीज को समझना नहीं चाह रहे हैं कि आप आज की सोसाइटी की नीड क्या है, आज के लोगों की नीड क्या है, आज के जो पीपल्स हैं, जो इस समय सोसाइटी जो एक ग्रो करने के लिए जरूरत है, वो हमें मालूम ही नहीं है। हम पीछे चल रहे हैं, लोग आगे निकले जा रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ थिंग वी शुड थिंक अबाउट। सो ये है, ये बेसिकली क्या है, ये मोरल्स जो है थोड़ा सा ये कंसिस्टेंट रहते हैं, अनचेंजिंग होता है वो ज्यादातर। ऐसा नहीं कि बहुत बिल्कुल नहीं होता, चेंजेबल हो सकता है, एजुकेशन के थ्रू चेंज हो सकता है, कई बार आपके ग्रोइंग उसमें आ सकता है चेंजेस। लेकिन समझना इस बात का है कि यहाँ पर ये मैक्सिमम लेकिन चीजें होती हैं जो अनचेंज हो जाती है। कई बार होता है ना, जो बचपन से आपकी एक आदत होती है, जैसे कई बार होता है आपकी एक बोलने में एक नया तरीका आ जाता है, तो वो आपका छूटता नहीं, बहुत रेयर जाता है। जैसे आपकी आदत में कोई चीज आ जाए, वो बहुत बार में जाती है, आदत बन जाती है ना। जैसे प्यार में अक्सर ऐसा हो जाता है कि किसी किसी की आदत हो जाती है, जब छूटता तो ऐसा लगता है कि जान ही निकल जाएगी। होता है कि नहीं, प्यार किया कभी कि नहीं, है ना। यू डू लव समवन, तो आपने किसी को प्यार करते हो या किया होगा, पेरेंट्स को भी। अगर कोई दूर जाता है, मैं पेरेंट्स का प्यार प्यार तो लव जो होता है वो अनकंडीशनल होता है, बट आपका जो जिससे आप करते हो आज की डेट में, वो अनकंडीशनल नहीं है, वो कंडीशनल है। एंड कंडीशनल के साथ साथ प्रॉफिटेबल भी देखता है कि कहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। तो उस चीज को हमें लगता है कि नहीं यार, आई कांट लिव विदाउट यू, वो भी कह रहा है कि आई कांट लिव विदाउट यू। इस चक्कर में रातें निकल जाती हैं, पढ़ाई नहीं होती है इस चक्कर में, और आपको लगता है कि नहीं यार, इसको नहीं टाइम दूंगा तो गलत कर रहा हूँ इसके साथ। अरे जिस चीज के लिए आप आए हो, यू आर हियर फॉर द स्टडी, बट यू आर डूइंग अदर थिंग्स। सो आपको स्टडी लगता है सेकेंडरी है, ये फर्स्ट है, ये प्राइमरी है ये, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसी चीजें बिगड़ जाती हैं। सो आपको उस टाइम पे लग रहा है कि ये चीजें ठीक चल रही हैं, ये चीजें, लेकिन वहां पर मैं चेंज नहीं हो सकता, मैं कभी बदलूंगा नहीं। बदल सकते, क्यों नहीं बदल सकते भाई। अकॉर्डिंग टू टाइम यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, बिकॉज टाइम नीड्स टू चेंज। तो उस टाइम पे चेंज होना बहुत जरूरी है। तो वो आपको चीजें समझती हैं, ऐसा थोड़ा ना है कि आई कांट लिव विदाउट यू, यू कैन लिव विदाउट एनीबडी। बिकॉज आज जब आपके पेरेंट्स आपके बिना रह सकते हैं, तो आप भी रह सकते हो किसी के बिना। वहां पर आपको ये चूज करना है कि व्हाट इज एथिकल, व्हाट इज अनएथिकल थिंग्स। सो दैट इज मेन थिंग्स। तो ये दो डिफरेंसेस। नंबर थ्री डिफरेंस, यहाँ पर थ्री डिफरेंस में ये है, ऑफन अप्लाइज टू ग्रुप्स और सोसाइटी। ये ग्रुप्स और सोसाइटी में अप्लाइज होता है, ग्रुप आर सोसाइटीज। बट मोरल्स, पर्सनल morals them believe in wrong, ये कैसा रिगार्डलेस है। एंड ये अप्लाइज टू इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल अप्लाई हो रहा है। ये कैसा, ग्रुप एंड सोसाइटी में अप्लाई हो रहा है, दिस इज इंडिविजुअल। जैसे कहते हैं ना कई बार कि मैंने अपने में चेंज लेके आया हूं, आपको कई बार सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है, वो आपका इथिक्स है, या आप सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वो इथिकल चीजें हैं। जब आप को अपने आप को चेंज करने का कोशिश कर रहे हो, सिर्फ अपने आप को, और अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, नॉट अकॉर्डिंग टू society, not according to groups, not according to your office universal law, you are changing yourself according to you, तो that is moral things। ठीक है, ये morals हैं। इसके बाद आपके एक चीजें और भी इसमें आ सकती हैं, इसमें एक्सटर्नल थिंग्स ज्यादा हैं एथिक्स में, एक्सटर्नल थिंग्स, इसमें इंटरनल ज्यादा है, राइट। एंड इसमें पब्लिक प्राइवेट की अगर बात करें, डिस्कस करें, तो यहाँ पर ग्रुप भी है, सोसाइटी है, जैसे मैंने बताया। यहाँ पर पर्सनल इंटरनल बिलीफ
ज्यादा है, इट मीन्स यहाँ पर पब्लिक कम प्राइवेट ज्यादा है, आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड होता है, यहाँ पर पब्लिक ज्यादा होता है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल आप देख लो, कई बार ऐसे कर्नाटका में आपने एक ब्यूरोक्रेट के बारे में, यू हर्ड अबाउट द ब्यूरोक्रेट डीएम, सो he committed suicide because of he couldn't understand his wife, वो डिसीजन ही नहीं ले सका, अपनी वाइफ को नहीं समझ सका, तो उस चीज की वजह से आके प्रेशर में उसने हर सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाया, तो उसने सुसाइड कर लिया। दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी टफ थिंग्स। ओके, सो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर हम इन चीज़ों को लेके आते हैं। और हमें एथिक्स अब काम कहाँ आता है, हमें एथिक्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, किस किस काम के लिए पड़ती है, क्यों हम एथिक्स पढ़ते हैं? रीज़न नंबर वन, यू कैन हैंडल द सिचुएशन, यू कैन हैंडल द सिचुएशन नंबर वन, बिकॉज यू नो कि व्हाट यू हैव टू टेक द डिसीजंस, किस सिचुएशन में कैसा डिसीजन लेना है, सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, लोग क्या कैसे कहेंगे, उस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देते हैं। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके पास आती है चीज़ें, एथिक्स आपको पता है तो सिचुएशन हैंडल कर लोगे, आप उस टाइम पे इम्पेशेंट नहीं होगे। नंबर टू, इथिकल प्रिंसिपल्स आपके अंदर इनबिल्ड हो जाएंगे। नंबर थ्री, आपके अंदर एक क्वालिटी और आ जाएगी, इथिकल डिसीजन मेकिंग। नंबर फोर, इथिकल डिसीजन मेकिंग। एंड नंबर फोर इज आउटकम, यानी रिजल्ट जो होगा वो कैसा होगा, वो भी इथिकल होगा, राइट होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये आउटकम्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके उसमें काम आती हैं कि भाई आपके साथ कैसे आ जाएगा। आप जब ये चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ड हो जाती हैं, सो व्हाट यू विल डू, यू डू वेरी, यानी ड्यूटी टू द पब्लिक, public. Number two, because you are a civil servant, as you have you has an ethical obligations to protect the public interest and including health and environmental safety. So बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर आती हैं कि चीज़ें यू हैव टू थिंक, कई बार ऐसी सिचुएशन डिसास्टर आ गया तो एज अ ब्यूरोक्रेट यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू रेस्क्यू देम, आपको रेस्क्यू करना है उन्हें और उनके लिए काम करना है। तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी आपको, वहाँ पर आपको सिखाती, वहाँ पर आपको ये नहीं बताता कि यार मैं एक डीएम हूँ, मैं कैसे इन्हें बाहर निकालूंगा, मैं इनके लिए कैसे यहाँ से उठा के कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह रख दूँ। बिकॉज आपको वहाँ पर सिचुएशन को समझना है, यू आर अ ब्यूरोक्रेट, यू आर अ डीएम, यू आर अ district magistrate, but that time you have a responsibilities to rescue them, to save them, आपके पास उसके लिए पर्पस है। तो आपको यही तो सिखाया जाता है कि अगर उस टाइम पे सिचुएशन आती, जैसे अभी अभी केरला में हुआ था, है ना, वहाँ पर भी डिसास्टर आया, लैंडस्लाइड्स हो गया, तो वहाँ का जो हेड होगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या आईपीएस होंगे, उन्होंने क्या काम नहीं किया होगा, एक एक ऑफिसर का मैं नाम याद नहीं आ रहा, साउथ का ही था, बेसिकली वहाँ पर जब डिसास्टर आया तो उन लोगों ने क्या किया, इसको आ, उन्होंने अपने साथ एक अनाज खुद बोरी पर, जो उनके लिए खाने पीने के लिए फूड है, वो लेकर कंधे पे रख के लगभग 3 to 4 किलोमीटर पैदल गए। ये एक उनकी ड्यूटी अपनी थी। दूसरी, आप जब ये चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी, नंबर टू आपके अंदर एक चीज़ और चीज़ें हो जाएंगी, क्या किसमें काम आएगी, लॉयलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई, बिकॉज ऑफ, क्यों ये ऐसा क्यों है, लॉयल्टी क्यों है,
लॉयलिटी इसलिए क्योंकि आप देखो कई बार होता है कि लड़का जैसे कि कई बार जब आप आईएएस नहीं बनते हैं, कुछ नहीं, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो आपको लगता है कैसे भी काम करके ले लें, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट आप जब ब्यूरोक्रेट बनते हैं, जब आपकी फाउंडेशन कोर्सेज वहाँ होती हैं, जब आप समझते हैं अपने ड्यूटी को समझते हैं, जब आपको बताया जाता है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, तो जब ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पर समझ आता है कि यार मुझे गलत चीज़ें नहीं करनी है, मैं एकदम सही चीज़ें करूँगा। आपको क्यों? क्योंकि आपको अब इथिकल आपके अंदर इनबिल्ड हो चुका है। यू आर अ वेरी इथिकल पर्सन नाउ। सो अब आपका दोस्त भी कहता है यार तू डीएम हो, वहाँ का देख लेना मेरा काम, आपने कहा यार मेरे से होगा नहीं। वाई? बिकॉज कि आप ईमानदार हो रहे हो, आपको अपनी ड्यूटी समझ आ रही है कि मुझे ये अगर मेरा दोस्त गलत है मैं इसका साथ क्यों दूं भाई। तो वो चीज़ें हैं, इथिकल डायलेमा से बाहर आपको निकालता है ये। कई बार सिचुएशन ऐसी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि आपको कैसे क्या डिसीजन लेना है, तो वहाँ पर इथिकल डायलेमा कई टाइप का आता हो सकता है। आपको ब्राइब मिलना शुरू हो जाए, इट मीन्स करप्शन, घूस मिले, तो इथिकल डायलेमा से बाहर निकालना भी इसका इथिक्स का काम आता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें इथिकल डायलेमा से क्या होता है कि आपके जैसे कि पॉलिसीज़ क्या है उसके हिसाब से काम कर रहे हो आप अपने रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम कर रहे हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। इवेल्युएट रिस्पॉन्सेस इवेल्युएट करोगे आप, एक्सटर्नल इंटरनल जो आपके आपके अंदर चाहिए चीज़ें, उन चीज़ों को आप एविडेंसेस आपके सामने आना चाहिए जिससे आप सही चीज़ को प्रोटेक्ट कर सके और अदर चीज़ को आप निगलेक्ट कर सकें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली होती है। तो इन चीज़ों को ये चीज़ें आती है आपके, इससे रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन ये होता है जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो आपको रिफ्लेक्ट करता है रिवॉर्ड के फॉर्म में। रिवॉर्ड कैसा? वहाँ पर पैसा नहीं मिलता, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर रिवॉर्ड्स फॉर यू। जब आप अच्छे काम करते हो, आपसे करने से पहले कोई डरेगा चीज़ों को लेकर, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इसे हम बोलते हैं एथिक्स, बेसिकली यही एथिक्स है। अब हम चलते हैं इसमें से टाइप ऑफ एथिक्स। डू यू नो अबाउट टाइप ऑफ एथिक्स? नंबर एक, मेटा एथिक्स। नंबर टू, नॉर्मेटिव एथिक्स। नंबर थ्री, कोऑपरेटिव एथिक्स भी कह सकते हैं, या फिर इसे सॉरी, नंबर फोर, अप्लाइड एथिक्स। अब इसमें इतनी बारीक चीज़ है ना, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझना है इसमें, इतनी छोटी छोटी हैं कि आप इसे समझना थोड़ा सा आपके लिए बहुत, कि है सारी चीज़ें एक ही, लेकिन इनमें हमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, कैसे कैसे चीज़ें होंगी हमारे साथ, क्या बदलेंगी इसमें, कैसे आएंगी हमारी। तो जैसे मैंने बताया कि मेटा इथिक्स, नॉर्मेटिव इथिक्स को एक पॉइंट और कभी कभी लिखा जाता है, प्रिस्क्रिप्टिव इथिक्स भी कहीं कहीं लिख के आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। कई बार ऐसा होता है ना, वर्ड्स का एयर फेर हो जाता है, फिर लगता है कि यार सर ने पढ़ाया नहीं, इस चीज़ को बताया नहीं। डिफरेंसेस कुछ नहीं है, उसी का नाम होता है। जैसे कोऑपरेटिव इथिक्स है, ये सॉरी कोऑपरेटिव या कंपैरेटिव इथिक्स ऐसे बोलते हैं इसको, कंपैरेटिव इथिक्स है। और कंपैरेटिव इथिक्स के साथ साथ इसको एक वर्ड और बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव इथिक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इथिक्स कह सकते हैं। नंबर फोर, अप्लाइड इथिक्स। तो सबसे पहले हम, और ये भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, मेटा तो मेटा ही है, मेटा में कुछ दूसरा नहीं है चीज़ें, बट नॉर्मेटिव इथिक्स डिवाइड है थ्री पार्ट्स में। नंबर वन, डियोंटोलॉजिकल, ये थ्री पार्ट्स में है।
deontological ethics. Number 2, teleological ethics. Number 4, virtue ethics. Number 3, virtue ethics. And this is also divided in many parts, like number 1, bioethics, cyber ethics, environmental ethics. ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर साइड कर देता हूँ, शायद आपके इसमें नहीं आ रहा होगा. सो बायोएथिक्स, साइबर एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स, इंटरनेशनल एथिक्स. ठीक है, ऐसे इसमें सारी चीजें ETC ऐसे सब इसमें ला सकते हो. अब सबसे शुरुआत करते हैं इसमें कि मेटा एथिक्स क्या है, कैसे चीज़ें आ रही हैं, कैसे इसे हम क्लियर कर सकते हैं कि भाई हमारी ये चीज़ है, मेटा एथिक्स हमें ऐसे पढ़ना है. क्या है नॉर्मेटिव एथिक्स, क्या है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, क्या है वर्च्यू एथिक्स. ये लाइफ में बहुत बार आपको आता है. सर कैन यू प्लीज स्पीक लाउड लिटिल बिट. अच्छा, ओके ओके, नाउ आई एम ओके. Now, please answer me. Okay, so let's start with meta ethics. Okay, meta ethics. Do you know meta ethics? Have you heard about this word meta? So meta ethics basically it means like example में मैं आपको समझाऊं. What is meant by a wrong right action. मतलब मेटा एथिक्स की अगर मैं बात करूं तो मेटा एथिक्स इज एथिक्स अबाउट एथिक्स. मेटा एथिक्स इज एथिक्स अबाउट एथिक्स. मतलब एथिक्स के अंदर एथिक्स, यानी आपको ये समझना है कि राइट है तो राइट की डेफिनेशन क्या है. यू हैव टू डील द क्वेश्चन विद डेफिनेशन ऑफ राइट एंड डेफिनेशन ऑफ रॉन्ग. उसके डेफिनेशन के साथ, ये नहीं कि आपको राइट लग रहा है तो ठीक है, सोसाइटी के लिए राइट है तो ठीक है. नहीं, आपको ये भी समझना है कि क्यों राइट है, इसका डेफिनेशन क्यों है ऐसा. जैसे आप सोचते हो टेररिस्ट होते हैं ना, टेररिस्ट आते हैं है ना. टेररिस्ट को मालूम होता है जब उनके लोग होते हैं जो उन्हें आका जिन्हें बोलते हैं आप, जो उन्हें बेसिकली ट्रेन करते हैं, तो उस टाइम पर आप देखो वो कहते हैं कि हम किसी को अगर मारेंगे तो क्या सही है, क्या रॉन्ग है. वो राइट की डेफिनेशन वहां पर उन्हें गलत राइट की डेफिनेशन बताते हैं. उन्हें राइट का डेफिनेशन सही नहीं बताया जाता, उन्हें रॉन्ग का डेफिनेशन सही नहीं बताया जाता. उन्हें वहां पर राइट एंड रॉन्ग का डेफिनेशन अलग अलग होता है. नंबर 1 कि वहां पर आपका राइट का डेफिनेशन कुछ और होगा. उनको ये बताते हैं कि कैसे आप सही हो. अदरवाइज उसको मालूम है कि अगर मैं किसी निर्दोष को मारूं, इनोसेंट पर्सन को, इफ आई किल एनी समवन हु इज इनोसेंट, सो आई थिंक इट इज वेरी रॉन्ग थिंग. बट आपको उस चीज में समझना है. कई बार होता है कि मैं आज जान नहीं लूंगा किसी की, बट आपके घर में या कहीं पर आपकी जगह पर टेररिस्ट अटैक कर गया, उस टाइम पे आप किसी की जान नहीं ले रहे तो आपको मार देगा वो. तो उस टाइम पे एक तो सिचुएशन आ गई, दूसरी आपको एथिक्स कल वहां पर क्या सोचना है, राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन वहां पर आपको तुरंत पता होनी चाहिए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और चीजें ठीक करने के लिए. तो आई थिंक दिस इज द मेटा एथिक्स बेसिकली. समझ आ रहा है ना चीजें, क्योंकि ये ना हो बाद में कि हमें, और जब कहीं भी कोई पॉइंट पे डाउट हो ना तो आप मुझे बताएंगे जरूर, क्योंकि यही एक आपका है कि अभी ये जो पढ़ लेंगे बाद में, अगर क्लासेस के बाद अगर याद रखते हो तो फिर
क्लासेस अगर ख़त्म हो कंप्लीट हो जाए उसके बाद पूछो तो फिर चीज़ें होती नहीं है उस टाइम पे। फिर पता लगे सारे इथिक्स कंप्लीट हो गया, फिर आप पूछ रहे हो कि अब मेरे पास डाउट है, तब मैं नहीं होऊंगा शायद आपके पास। तो उस टाइम को अगर हम क्लास के एंड में है या फिर साथ ही साथ पूछ लेंगे तो ठीक रहेगा। इट मीन्स डील इथिक्स, मेटा इथिक्स डील्स विद क्वेश्चन, deal with deal with definition of right sorry, right and wrong, and actual definition of meta ethics. Meta means about the things itself, about the things itself. Okay, and so now you can say the meta ethics. So meta ethics is meta ethics is ethics about ethics. ठीक है, ये दो चीजें इसमें आ जाएंगी। नंबर 2, हम इसमें ये हो गया मेटा एथिक्स, समझ आ रहा है मेटा एथिक्स। नंबर 2 पे चलते हैं हम, नॉर्मेटिव एथिक्स। पहले तो हम नॉर्मेटिव एथिक्स को समझेंगे, फिर इसके बाद अदर अदर पॉइंट को उसको समझेंगे। यहाँ पर भी हमें क्या है ना कि जो नॉर्म इसमें बेसिकली नॉर्मेटिव एथिक्स का मतलब है, यहाँ पर 3 पॉइंट है ना आपके इसके, डियोंटोलॉजी, डियोंटोलॉजिकल एंड टेलियोलॉजिकल, नंबर 3 वर्च्यू। इसका मतलब जानते हैं क्या है, जब कोई चीज़ आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है, डियोंटोलॉजी मतलब स्टार्ट करने के टाइम पर ड्यूटी आपकी, एक्शन जब ले रहे होते हैं कि आपका एक्शन कैसा है, ये होता है आउटकम। बेसिकली आपके एक्शन का रिजल्ट क्या आया, व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। ओके, नंबर 3, ये किसी के लिए आप कितना ज़्यादा चीज़ें समझते हो, कितना ज़्यादा आप एथिक्स को समझते, कितना लोगों के लिए आप समझ पा रहे हो, लोगों के लिए कर पा रहे हो। वर्च्यू है, यहाँ पर सम्मान की बात है, आपकी चीज़ों को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें, तो बेसिकली ये जो एक्शन है, नॉर्मेटिव का मतलब ही यहाँ पर एक्शन से है। अब जो एक्शन लिया जा रहा है, इसको भी डेफिनेशन के साथ, राइट एंड रॉन्ग के डेफिनेशन के साथ इसको, इस सेक्शन को क्लियर करना होगा। राइट और रॉन्ग, जो डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग डील विद एक्शन, डील विद डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इसके साथ हम इसको नॉर्मेटिव एथिक्स को समझते हैं। और ये हमारी इसकी शुरुआत ऐसे हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि आपको दिखे बाहर, कई बार होता है कि लोगों के अंदर होता है, जैसे कि प्लेटो ने कहा है, प्लेटो जानते हो ना, प्लेटो he is the philosopher and he was a student of Socrates। तो प्लेटो प्लेटो सेड कि ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन के अंदर अगर एक्शन है तो उस चीज को वो शो करेगा तभी पता चलेगा कि वो इथिकल है। कई बार होता है अनइथिकल, इथिकल है लेकिन वो शो नहीं कर पा रहा है, इट मीन तब भी ठीक है वो। तो यहाँ पर वो चीज को भी, तो यहाँ पर एक होता है डियोंटोलॉजी। डियोंटोलॉजी की अगर बात करते हैं तो काम स्टार्ट करने से पहले जब काम कर रहे होते हैं उस टाइम पर आपका एक्शन जो है, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, क्या है एक्शन, कैसे है आपका, राइट है कि नहीं है, तो उस चीज को हम यहाँ पर लेके आते हैं। दूसरा चीज ये है कि जब आपका रिजल्ट आता है उसे टेलियोलॉजिकल बोलते हैं। आपका जो रिजल्ट है वो इथिकल, अगर आप
राइट एक्शन लेंगे तो राइट रिजल्ट आएगा, अगर आपका एक्शन ठीक नहीं होगा तो आपका रिजल्ट भी ठीक नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, तो दोनों चीज इसका मतलब रॉन्ग कर रहे हो आप, यू आर नॉट एथिकल पर्सन, यू आर नॉट डूइंग राइट थिंग्स। यू हैड टेक एक्शन, जो आपने एक्शन लिया था वो आई थिंक कहीं ना कहीं गलत था, योर एक्शन वॉज रॉन्ग, दैट्स वाई योर रिजल्ट इज रॉन्ग। ठीक है, तो इस चीज को है यहाँ पर, तो इन चीजों को हमें समझना है, इस चीज को हमें जानना है। अपनी देखो एथिक्स क्या है, कि जब मैं आपको एक एक्चुअल में आपको बता दूं, एथिक्स बेसिकली जब आप अपनी लाइफ में अपनी चीजों को अपने उसमें उतार लेते हैं, अपनी आप को देखो, आप चारों तरफ ध्यान से समझने की कोशिश करो कि आप क्या कर रहे हो। आप स्टडी से लेके अभी अपने जीवन से लेके जहाँ से आपने स्टडी की है, गांव घर जो भी आपका है, विलेज, आसपास सोसाइटी, जो लोग जी रहे हैं, वही तो इथिक्स है। इथिक्स कोई नई चीज नहीं है, इथिक्स नॉट अ डिफरेंट थिंग्स। इथिक्स कह सकते हैं ऑल थिंग्स इज गोइंग अराउंड यू, जो भी चीज चल रही है आपके आसपास वो सारा तो इथिक्स है, बस आपको उसमें समझना है राइट एंड रॉन्ग के डेफिनेशन के साथ, वही इथिक्स है। बट हमें यूपीएससी के लिए थोड़ा सा थियोरेटिकल हमें समझना पड़ता है उस चीज़ को, और थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई चीज़ें। वर्च्यू का मतलब यहाँ पर इस चीज़ से लेकर हम यहाँ पर आ सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। वर्च्यू थिक्स इज मीन्स सब ब्रांच, और कि आप कितना अच्छा किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी का सम्मान का कितना ध्यान रख रहे हैं, किसी का रिस्पेक्टफुली कितना काम कर पा रहे हैं, बट उसमें आपको अनइथिकल नहीं होना रिस्पेक्ट के लिए, तो उस चीज़ को इथिकल भी रहें और चीज़ें भी अच्छी हो जाएं, तो ये हमारा वर्च्यू हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम डिस्क्रिप्टिव। नंबर थर्ड इज डिस्क्रिप्टिव या कंपेरेटिव कह सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव थिंग्स। डिस्क्रिप्टिव थिंग्स डील विद बिलीफ अबाउट द मोरालिटी। ये करती है कि किसी आदमी को अगर मार रहे हो, उस टाइम पर आपको समझना है, उस टाइम पे थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना है। लोगों को मारना तो पाप है, अहिंसा आप कहते हो अहिंसा इस अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा गलत है, लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको उसको मारना है, यू हैव टू किल हिम बिकॉज सिचुएशन डिमांड्स। आप उस टाइम पे नहीं करोगे तो आपको मार देगा। सही गलत के बारे में वहाँ टेररिस्ट की बात हो रही है, ये नहीं कि आपने गलत किया तब कोई मार रहा है, वो अलग बात है, लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी है। तो इट मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, डील्स विद पीपल्स पीपल्स बिलीफ अबाउट मोरालिटी एंड ऑल्सो डील्स विद, आप इसमें कैसे डील्स विद व्हाट सोसाइटी थिंक्स एज गुड और बैड, deals with what society think thinks as good or bad, क्या सही क्या गलत सोसाइटी जो तय करती है। या फिर कह सकते हैं एक इसके इन्वेस्टिगेशन किया जाए। इन्वेस्टिगेशन मतलब ये है तो डेफिनेशन के साथ, लेकिन इसमें डेफिनेशन ये है कि इन्वेस्टिगेशन ये है कि मोरल बिलीफ्स का जो एक अलग अलग ग्रुप में है, कई सारे हम ग्रुप कई सारी सोसाइटी का लिया हमने, हमने देखा कि यार ये ग्रुप ये कंपनी ऐसा क्यों करती है, इस कंपनी में ऐसा क्यों रूल है, थोड़ा हम अदर कंपनी के भी रूल निकालते हैं, फिर चीजों को निकालते हैं, फिर उससे कंपेयर कराते हैं, उन चीजों को देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं बेसिकली कि क्यों है ये सही। हम उसमें डेफिनेशन पे न जाके हम दूसरे के साथ कंपेयर, पूछ पुराना कोई ऐसा केस पड़ा हो उसके हिसाब से चीजों को देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, कि ऐसी सिचुएशन आई थी तो उन्होंने क्या किया था, ऐसी सिचुएशन आई थी तो उसने क्या किया था, तो इस चीज को हम बोलते हैं यहाँ पर। अब आते हैं अप्लाइड एथिक्स पर, नंबर 4। द मोस्ट practical branch of ethics
ये क्या है, बहुत ही प्रैक्टिकल ब्रांच है। डील्स विद एथिकल क्वेश्चंस, स्पेसिफिक प्रैक्टिकल फील्ड्स, जैसे कि आप साइबर में हो तो आपको मालूम है ये प्रैक्टिकली कि कितना नुकसान कर रहा है कितना सही, उसके हिसाब से आप काम करेंगे। जैसे अभी आप साइबर में तो है ही है ये, बाकी और भी चीज़ों में आपको बोल सकते हो, जैसे कि आप 5G लाने की हम बात कर रहे हैं कि 5G सभी पूरे वर्ल्ड में सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम क्यों पीछे। हम इन्वायरमेंट को भी ध्यान देना है, हमें काम तो करना है, हमें प्रोग्रेस तो करनी है, बट हमें कुछ चीज़ों को ध्यान भी रखना है, इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखना है, लोगों की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है, सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, लोगों के साथ रिलेशन का भी ध्यान रखना है। अभी देख लो ट्रम्प जीता हुआ है उसके साथ हमारे रिलेशंस कैसे होंगे, उनके साथ कैसे हमारी चीज़ें बैठेंगी, इंटरनेशनल रिलेशन हमारे कैसे बनेंगे, इथिकल रिलेशन होना चाहिए, हम उनके साथ रॉन्ग नहीं करें वो हमारे साथ रॉन्ग ना करें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ आने लगती हैं। तो ऐसी भी है बात, है ना। तो इनको हम बोलते हैं अप्लाइड एथिक्स में, चाहे वो किसी के साथ बिहेवियर में आप एक प्रैक्टिकल है, हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं भाई हम कर रहे हैं, आपको हमें लग रहा है चीज़ें गलत है, मेरे साथ हुआ है या किसी के साथ एक के साथ हुआ है, तो हम उस चीज़ को एक रूल बना लेते हैं कि अब अगली बार से ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं समझते हैं। तो ये जितनी भी होल थिंग्स हैं ये सारी की सारी एथिक्स का पार्ट है। अच्छा ये हमारा आज का डेमो सेशन हो रहा है, यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा कल का सेशन होगा वो ह्यूमन इंटरफेस होगा, ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है। और फिर इसके बाद अलग अलग टॉपिक्स, वैल्यू, एटीट्यूड, ऐसे सारी चीज़ें आती रहेंगी, इथिकल वैल्यूज, फंडामेंटल एथिक्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें, एप्टीट्यूड। तो इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे आज का। आई थिंक आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई आप पूछ सकते हैं, आपको समझ आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, है ना। हैव यू गॉट इट what I taught you? If you have any doubts, any kind of doubts in ethics and what you want to ask, then you can ask me without any hesitation, ठीक है। किसी को है डाउट? नो डाउट है, समझ नहीं आ रहा मुझे क्योंकि किसी क्वेश्चन आ नहीं रहे और सभी के एकदम क्लियर है क्या। देखो डाउट्स का मैं बता दूं, डाउट्स या तो आप आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो नहीं डाउट्स आपके आ रहे हैं, या तो आपको कुछ समझ नहीं आया तो डाउट्स नहीं होते। ओके गाइस, सो विल मीट टुमारो, क्लास में मिलेंगे हम जल्दी आपसे। और आपने आप डाउट्स घर पे भी पढ़िएगा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम साथ में कराएंगे, उनके भी साथ चलेंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।